بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم۔ قسط نمبر 20 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ میں ملک سے باہر ہوں اور مجھے یہ فکر کہ کہیں میری عدم موجودگی میں تمہیں میری ضرورت نہ پڑ جائے۔ تم کتنی گنتی گنو اور میں آ نہ پاؤں، سو میرا یہ نمبر بھی محفوظ کر لو۔ خدا نخواستہ کبھی کوئی پریشانی اور مسئلہ ہو تو مجھے فوراً بتاؤ، میں یہاں بیٹھے بیٹھے بھی تمہارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سارا نے اپنے سیل فون پر آیا یہ پیغام کوئی 20 مرتبہ پڑھا تھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم کہیں دور جا رہے ہو۔ اس رات سونے سے پہلے اس نے 20 مرتبہ پڑھے پیغام کے جواب میں سوال لکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس ملک میں وہ گیا ہے اس کے دن اور رات میں اس کے اپنے دن اور رات سے کتنا فرق تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے فون سے بھیجا ہوا یہ پیغام خاصا مہنگا پڑے گا، اس کے کریڈٹ میں موجود کتنے ہی پیسے کم ہو جائیں۔ اسے یہ معلوم تھا تو صرف یہ کہ اس پیغام کے جواب کے انتظار کے لیے اسے گنتی گننا تھی، 1 2 3۔ اس نے تقریباً پون گھنٹے تک 3 سے آگے گنتی نہیں گنی۔ گنتی گنتے جواب کا انتظار کرتے جب اس کی آنکھیں تھک کر بند ہونے لگیں، سیل فون کی اسکرین کی روشنی نے اسے چونکا دیا۔ میں بہت لاپرواہ غیر ذمہ دار ہوں، مجھے تمہیں اطلاع کر کے آنا چاہیے تھا، مگر میں نے بتایا نا کہ میں خاصا غیر ذمہ دار ہوں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ تم منتظر ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اچانک تمہیں میری ضرورت پڑ جائے اور تم گنتی گنو اور مایوسی کا شکار ہو جاؤ۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت کسی بھی جگہ تمہارے لیے حاضر ہوں۔ سارا نے اپنے پیغام کا جواب پڑھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی گنتی نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ سارا خان کی وہ رات بہت اچھی گزری تھی، اسے گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔ کئی دن کی مسلسل کوشش کے بعد جب کہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ نمبر جو اس کے سیل فون کے اہم ترین دوستوں کی فہرست میں محفوظ تھا سے کبھی جواب آئے گا، اس کا بھیجا پیغام یہ نمبر وصول کرے گا۔ مہانور نے اس رات ایک بار پھر اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تھی۔ جواب میں اسے کئی بار کی طرح آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے جیسے الفاظ ایک بار پھر سننے کو ملے تھے۔ سوچ لو، ہو سکتا ہے میں کوئی کرمنل نکل آؤں۔ اسے اچانک یہ الفاظ یاد آئے۔ پتہ نہیں، اتفاقات کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ میں تمہیں اس سانگ کا لنک بھیج دوں گا۔ گڈ بائے مہانور، گڈ بائے گڈ بائے گڈ بائے۔ یہ 2 الفاظ باز گشت کی طرح اس کے ارد گرد بکھرنے لگے۔ میں نے تم پر اتنا اعتبار کیا کہ تمہارے علاوہ تم سے تمہارے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ میں نے تم سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اور تمہارے ڈیڈی کیا کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو۔ میں نے تم سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ اگر تمہاری بہن تمہارے باپ کی شناخت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے تو نادیہ بلال کیوں ہے اور تم سعد سلطان کیوں۔ میں نے تمہارے ہر روپ میں تمہیں پہچان لیا، مگر میں تمہارے اصلی روپ کو نہیں پہچان پائی۔ تم اصل میں کیا ہو میں ایک بار بھی اندازہ نہیں لگا پائی۔ تم نے میرے ساتھ دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھایا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور میں غیر محسوس طریقے سے تم سے اتنی مانوس ہو گئی کہ مجھے لگا کہ تم تو ہر جگہ ہر وقت میری دسترس میں ہو۔ مہانور نے اپنے بیڈ پر کمر کے بل لیٹے لیٹے سوچا اور اپنی بھیگتی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے فون میں محفوظ کئی پیغام گھوم رہے تھے۔ چارکول اسکیچ کے بارے میں آنے والے پیغام پر اس کے رد عمل کا فوری جواب، فضا ظہور کی تلاش میں کیے جانے والے پیغام کا فوری جواب، اس کی واپسی کے بارے میں پیغام کا فوری رد عمل، اور ابراہیم کے ریسٹورنٹ میں مدعو کیے جانا۔ کیا تمہارے پہلے سارے روپ تمہارے بہروپ تھے یا پھر تمہارا اصل روپ تمہارا بہروپ تھا؟ اس نے ایک بار پھر اپنی بھیگی آنکھیں پونچھیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، میری ذات کو تم کیوں اپنے مشاغل کے دائرے میں گھسیٹ لے گئے اور میں سدا کی احمق تمہارے لفظ لفظ پر یقین کرتی رہی۔ میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تم جو اتنے بڑے بہروپیے ہو، تمہاری کون سی بات قابل اعتبار ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے سامنے دیوار پر لگے دیوار گیر آئینے میں لیمپ کی روشنی میں ابھرتا اپنا عکس دیکھا۔ آج تو تم بہت مختلف لگ رہی ہو، خاصی معقول۔ میرے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں،
مانو نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹے. ایک بار پھر اس کی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی. اس کے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں گر گئے اور اس کے بال ایک بار پھر بکھر گئے. اس کے بال بلا تردد عمدگی سے اس کے شانوں پر بکھرتے ہیں. الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے. یہ خیال کتنا المناک ہے کہ وہ خود کو اس نظریے سے نہیں دیکھتی جس میں اسے دیکھتا ہوں. تمہارا جو روپ ہے وہ مبوحت کن ہے. ماہنور کو محسوس ہوا اور وہ مسلسل بے آواز رو رہی تھی. وہ رات ماہنور کے لیے بہت طویل اور غم انگیز تھی. رات بھر ایک لمحے کے لیے بھی اسے نیند نہیں آئی تھی. نادیہ نے اپنے ای میل باکس کو یہ دیکھنے کی غرض سے کھولا تھا کہ شاید اس میں اس درخواست کا جواب موصول ہو جو اس نے اپنی ایک کمپنی کو آئندہ 6 ماہ کے تعلیمی وظیفے کے لیے بھجوائی تھی. مگر یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کہ اس درخواست کا جواب موجود نہیں تھا. مایوسی کے عالم میں لاگ آؤٹ کرنے سے پہلے اس نے سرسری نظر میلز پر ڈالی جو مختلف تجارتی کمپنیوں کے پیغامات سے بھری پڑی تھی. کہاں اور کب سیل لگی رہی ہے، سیل میں کیا کیا دستیاب تھا، کس سوشل ویب سائٹ پر کون سا اس کا دوست بننے کا خواہش مند تھا، چیزوں کی آن لائن خرید و فروخت کے اعلانات. اس نے ایک ساتھ کئی پیغامات کو ختم کرنے کی غرض سے ان پر نشان لگانے شروع کیے. نشان لگاتے لگاتے ایک پیغام پر آ کر اس کی انگلی رک گئی. اس نے پہلے اس پیغام کو غور سے نہیں پڑھا تھا. اس نے انگلی سے کلک کر کے اس پیغام کو کھولا. پیغام کی تفصیلات میں لندن کی کسی ٹریول ایجنسی کی طرف سے اس کے پاسپورٹ اور ویزے کی نقول مانگی گئی تھی اور اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بذریعہ ای میل جلد یہ نقول بھیج دے تاکہ آئندہ 15 دن کے اندر اس کے سفری انتظامات مکمل کیے جا سکیں. نادیہ کے لیے یہ پیغام غیر متوقع اور حیران کن تھا. اس نے کہیں بھی لندن تک کے سفر کے لیے درخواست نہیں بھیج رکھی تھی. 2-3 بار اس پیغام کو پڑھنے کے بعد اس نے اس کے جواب میں پاسپورٹ اور ویزے کی نقل مانگنے کی وجہ دریافت کی اور یہ پیغامات ختم کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے سائن آؤٹ کرایا. اب اس کا ذہن اس پیغام میں الجھ گیا تھا. یہ کسی اشتہاری مہم کا حصہ نہیں لگ رہا تھا. نہ ہی نادیہ نے کسی انعامی مقابلے میں کوئی تفریحی ٹرپ جیت رکھا تھا. موسم گرما کے آغاز پر اس طرح کے ٹرپ کا تصور اگرچہ بہت خوشگوار تھا مگر اس کی سمجھ میں بہت سوچنے کے بعد بھی یہ نہیں آیا تھا کہ یہ پیغام اسے کیوں موصول ہوا تھا. کھاری نے ماہنور کے گھر میں پہلی دفعہ قدم رکھتے ہی بھانپ لیا تھا کہ ماہنور کے گھر کے رہن سہن اور چودھری صاحب کے گھر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ بچپن سے چودھری صاحب کے ان بھائی کو کبھی کبھار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں آتے دیکھ رہا تھا جو لاہور شہر میں رہتے تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے. کھاری کو ہمیشہ یہ بات اچھی لگتی تھی کہ چودھری صاحب کے یہ بھائی اور ان کی بیوی فارم ہاؤس کے ملازمین سے بھی بہت ادب اور پیار کے ساتھ بات کرتے تھے. البتہ ان کا اندازہ لیے دیے رہنے والا ہوتا تھا. چودھری صاحب کے بھتیجے اور بھتیجی کو بھی وہ بچپن سے دیکھ رہا تھا مگر ماہنور بیوی کے گزشتہ برس کے قدر طویل قیام کے دوران جو وہ ان کے اخلاق اور مروت کا دل دادا ہوا تھا اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں تھا. چودھرانی کے ساتھ لاہور آنے میں اور سب خوش کن باتوں پر یہ تصور بھاری تھا کہ وہ ماہنور بیوی سے ملاقات کر سکے گا مگر ماہنور کے گھر میں ایک دن کے قیام کے اندر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ چھٹیوں کی بے فکری میں وقت گزارتی ماہنور اپنے اور شہر میں اپنی مصروفیت میں گم مشین بنی ماہنور میں خاصا فرق ہے. جس دن کھاری چودھرانی کے ساتھ لاہور پہنچا اس روز تو اس نے ماہنور سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی تھی. اگلے روز صبح جب چوکیدار کے ساتھ گیٹ پر اسٹول رکھ کر بیٹھا تھا اسے ماہنور گھر کے گراج میں کھڑی نظر آئی. السلام علیکم. کھاری بھاگ کر گراج کی طرف آیا اور دانت نکالتے ہوئے بولا وعلیکم السلام. ماہنور نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا. اس کی نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین پر جمی تھی اور دھیان تیزی سے فون کے نمبر دبانے کی طرف تھا. پھر وہ فون کان کے ساتھ لگا کر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی. اس کا چہرہ بھی دوسری طرف تھا. کھاری کو یوں اپنا نظر انداز کیا جانا تھوڑا مایوس کن لگا لیکن پھر بھی وہ وہیں کھڑا رہا. کچھ دیر فون پر گفتگو کے بعد فون بند کرتے ہوئے ماہنور نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی کھاری پر نظر پڑ گئی. ارے کھاری یہ تم ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا. کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ کھاری کی چند پل پہلے کی مایوسی ایک دم ہوا ہو گئی. وہ مسکرایا اور اس نے اپنی ایڑیوں کو ذرا سا اٹھا کر مزید لمبا نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے ماہنور کی طرف دیکھا. واٹ اے سرپرائز. وہ انگریزی زبان میں کچھ بولی جس کا مطلب کھاری نے یہ لیا کہ وہ کہہ رہی تھی تم کتنے لمبے ہو گئے ہو. میں نے جی
कल भी इंतज़ार करता रहा आपसे मुलाकात हो जाए, पर आप नज़र ही नहीं आई। खारी ने अपने गैर मामूली खुशी पर काबू पाते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी। मानू ने अफसोस का इजहार किया, कल मैं कैंपेन में बहुत मसरूफ़ थी, घर वापस आते आते बहुत देर हो गई। खारी ने कुछ ना भी समझते हुए सर हिलाया। तुम ठीक रह रहे हो ना, या नाश्ता कर लिया तुमने? मानू ने कदरे उजरत में पूछा। खारी के एक बार फिर सर हिलाने पर मानूर ने चौकीदार को आवाज़ दी, अजमत गुल, खारी का बहुत ख्याल रखना है भाई। चौकीदार ने सर हिलाते हुए गेट खोलने लगा। खारी ने देखा घर का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और मानूर का भाई सुलेमान हाथ में फाइलें और फ़ोन पर अपना बटवा और टाई पकड़े तेज़ी से बाहर निकला। जल्दी जल्दी जल्दी, महानूर, देर हो गई। वो तेज़ी से कहता गैराज में खड़ी एक छोटी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अच्छा खारी, फिर किसी वक्त तुमसे बात करूँ होगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। महानूर ने हल्के से हाथ हिलाते हुए खारी से कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। खारी सर और हाथ हिलाता गाड़ी के रास्ते से हट गया। पल के पल में गाड़ी स्टार्ट हुई और गेट से बाहर निकल गई। गाड़ी के जाने के बाद खारी को याद आया, इसने सोचा था महानूर को इसके गुज़िश्ता काम के बारे में याद दिलाएगा। इस वक्त महानूर की वजह से इसे अपने रोज़मर्रा के कामों से कितनी बार छुट्टी मिली थी। इसने सोच रखा था कि महानूर को ये भी बताएगा कि इस बार बाबा मंगू के मेले में बंदर वाले ने बंदर और रीछ के साथ साथ भालू और चीते के करतब भी दिखाए थे। मगर इस रोज़ तो क्या, खारी के काम से अगले कई दिन तक महानूर से इसका सामना नहीं हो सका। वैसे अपने यहाँ काम से शदीद बोरियत महसूस होने लगी थी। महानूर के घर का रफा अगरचा कम था नहीं था, मगर खारी को यहाँ अजीब सी घुटन महसूस होती थी। छोटा सा लॉन, छोटा सा ड्राइव वे, जिस वक्त चंद कदम चलने के बाद ही गाड़ी गेट आ जाता था और गेट से बाहर नई दुनिया सामने मौजूद होती थी, जहाँ कम ही का कोई दूसरे को जानता था, जहाँ इंसान मशीनों की तरह चलते रुकते थे। कोई किसी से मानूस और आशना नज़र नहीं आता था। खारी को चौधरानी के साथ शहर की मार्केटों और शॉपिंग सेंटर्स में भी घूमना पड़ता था, जहाँ बिजली से चलने वाली सीढ़ियाँ थीं, जिन पर कदम रखने से पहले चौधरानी एक दो बार चीख मारती और फिर खारी का हाथ पकड़कर इन पर कदम रखती। हर बार इन्हें ऐसा लगता कि वो गिर जाएंगी, लेकिन ऊपर और फिर इससे ऊपर की मंजिलों का सामान देखने के लिए इन्हें सीढ़ियों पर खड़े होना पड़ता। सारी दुकानों में एक जैसा ही सामान रखा होता। बीबी, तुसी ख्वार हो रहे हो? खारी चौधरानी के ज़ौक शौक को देख कर कहता, दुकानें नहीं शदाइया, ये माल है माल। चौधरानी अपनी मालूमात झाड़ते हुए खारी का मजाक उड़ाती। लो, माल तो इन दुकानों के अंदर रखा है, ये दुकानें तो माल नहीं ना। खारी समझता चौधरानी के फहम में कहीं कोई खराबी हो गई है। वो हंसकर रज़िया से कहता, जो आंखें मुंह फाड़े नए नए मंजर देखती, हवन नौकों की तरह सर हिलाती रहती, ये कल्ली तुम्हारी जान है। बीबी, देखो रोज़ नया जरा पहनती हैं, नए नए टॉप्स, नए नए जूते, नई नई अंगूठियाँ। वो भी तो ढेर सारी चीज़ें खरीदती होंगी ना, इसीलिए तो रोज़ नवी नकोर बन जाती हैं। रज़िया खारी को घूरती और खारी के जहन में फ़ायज़ा बीबी आ जाती। इनका अपनी चौधरानी जी से क्या मुकाबला, उन्होंने तो नौकरी पर जाना होता है। चलिए, वो रज़िया से कहना चाहता था, मगर इसके मुंह से लगने से चिढ़ थी। सो हर रोज़ चौधरानी के साथ घूमते फिरते कि महम में शरीक होता। हर रोज़ वो मखसूस बातें करते और थक कर घर वापस आ जाते। अमीर होना भी कितना मुश्किल काम है। हर रात खारी सोने से पहले सोचता, हेलो, ये मैं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ्रैंकफर्ट से पाकिस्तान जाने से पहले तुमसे मिल लूँ। तुमने अपने पासपोर्ट और वीज़ा की कापी मेल नहीं की। क्या तुम अपने मसरूफ़ वक्त से 2 दिन निकाल कर लंदन आ सकती हो? खैर ख्वाह साद सुल्तान। नादिर इस मेल का एक एक लफ्ज़ गौर से पढ़ा और खुशी से झूमते दिल पर काबू पाते हुए ये सोचने की कोशिश की, क्या इसे इस पर एतबार कर लेना चाहिए? कितनी पागल हो तुम। फिर से खुद को डांटा, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो तुमसे इतने कंसर्ट हैं, और कितने ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए एक ट्रिप अरेंज करेंगे। फिर इस मेल पर कैसा शक और इसके भेजने वाले की आई
आईडी पर कैसी बेएतबारी। इसने अपनी मेल बॉक्स के सफ़े को ऊपर नीचे किया। इसी ट्रैवलिंग एजेंसी से इसके सवाल के जवाब में एक बार याद दहानी की मेल आई हुई थी। वो एक बार फिर इससे इसकी तफसीलात पूछ रही थी। इस बार नादिया ने अपने कागजात स्कैन करके इनकी नकुल भिजवाने में आधा घंटा भी नहीं लगाया। हमें पता भी नहीं चला और शादी एकदम बड़ी भी हो गई। आप आराबे ही जानते हुए भी कि मौलवी साहब के पास इनकी बात का कोई माकूल जवाब नहीं होगा। कहा हूँ मौलवी साहब के पास माकूल तो क्या कोई जवाब ही नहीं था। वो सवाल करने लगी है। आप आराबे ने बताना चाहा कि इन्हें कैसे पता चला कि शादियाँ बड़ी हो गई थी। ऐसे सवाल जिनका या तो जवाब दिया जाए या बच्चे को झिड़क दिया जाए, मगर झिड़क देने से इसके जहन में और सवाल बेदार होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इसे क्या कहूँ। तुम्हारा उठना बैठना पढ़े लिखे लोगों में रहा है। मैं तो एक आम सा कम इलम इंसान हूँ। मेरा दिमाग बड़ी बात सोचता है न समझता है। लिहाजा मेरे ख्याल से तुम ही शादियों को बेहतर समझा सकती हो कि सवाल करना अच्छी आदत नहीं। मौलवी सिराज ने एक बार फिर मामले की गठरी इनकी तरफ उछाल दी थी। अगर मेरी समझ में आ गया होता तो मैं इसे समझा चुकी होती। मुझे क्या ज़रूरत थी आपके नन्हे से दिमाग पर बोझ डालने की। आप आराबे ने जल कर कहना चाहा, मगर अल्फाज ज़ुबान पर ही रोक लिए। शौहर के सामने ज़ुबान चलाने पर इन्हें आग की वो लपटें नज़र आने लगी जो औरतों की मुंतज़िर होंगी, जो शौहरों को उनका मुकाम देती हैं, इनका एहतराम करती हैं। वो अपने दादा दादी नाना नानी और फूफी चाचों के बारे में पूछती है। इसे हैरत होती है कि कोई खाला कोई मामू कभी इसके घर क्यों नहीं आता। उन्होंने अपनी दिल की जलन पर काबू पाते हुए एक बार फिर मौलवी सिराज से मशवरा लेने की कोशिश की। इसे बताना था ना, सब मरमरा गए। मौलवी साहब ने सुकून से जवाब दिया और अपने हर खुतबे में आपकी सच बोलने और झूठ से बचने की तलकीन करते हैं। उन्होंने मौलवी साहब को याद दिलाया, दुरुस्त मसलहत, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मौलवी साहब ने अपनी बात की वजह जाहिर की। दरोग 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 आप आराबे ने 3 बार दोहराया। हमारी तो जिंदगियाँ ही दोज़ख मसलहत आमेज का चलता फिरता नमूना बनकर रह गई हैं। बस सूरत दीगर जो होगा इसका सामना करने की हिम्मत है तो बता दो सादिया को। मौलवी सिराज ठंडे ठंडे जवाब दे रहे थे। इन्हें मालूम था कि दराती जिनके दोनों तरफ कांटदार कांटे थे, दरमियानी जगह जहाँ दोनों कदम जमा जमा कर चलते थे, बहुत कम चौड़ी है, बल्कि इतनी तंग थी कि एक गलत कदम इनके पाँव काटने के लिए काफ़ी होगा। चलते रहें आप मौलवी साहब, आपको रब ने भाग लगाए हुए हैं। ना कोई फिक्र ना फाका, एक से एक दिन एक सी रातें और आप मस्त हुए पड़े हैं। काश ऐसी बेनियाजी ऐसी फाका मस्ती सबको अता हो जाए। आप आराबे दिल ही दिल में गिलस्ती सोचती नहीं। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, सादिया को सख्ती से डांट देती हूँ कि पढ़ाई में दिल लगाए। बोर्ड के इम्तिहान का साल है। इधर उधर की सोचने के बजाय अच्छे नंबर लेने पर तवज्जो दे जो उम्र भर काम आने हैं। कितनी देर सोचने और किलसने के बाद उन्होंने भी मामले की गठरी कुछ देर के लिए सर से उतार कर ताक पर रख देने का फैसला करते हुए सोचा। और अगले रोज़ जब नाश्ता करते हुए सादिया ने इनसे इसी किस्म का सवाल किया तो उन्होंने अपने फैसले का अपने जामा पहनाते हुए इसे सख्ती से सवाल करने से मना कर दिया। इनका ख्याल था कि सादिया अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि इस डांट के जवाब में मारने के बजाय मजीद सवाल सोचने लगे। वो बेखबर थी कि सादिया ने मानी कि एक जहान की सैर करना शुरू कर रखी है। ज़िंदगी की हकीकत है इसकी उम्र की बच्चियाँ जिनको बहुत कुछ बगैर मांगे ही मैसर था, इसकी निस्बत सादिया पर जल्दी जल्दी हमला आवर हो रही थी। इनकी खोज लगाई जाए, इनके बारे में जाना जाए। आपा राबे की हर बौखलाहट और मौलवी साहब की मसलहत आमेज़ खामोशी बल्कि फरार सादिया के जहन में नित नए सवाल उठा रही थी। आपा राबे की डांट पर इसे यकीन होने लगा था कि इसके माँ बाप की दाल में कुछ काला था, जब ये पकने के बाद भी अलग नजर आता था। मानूर ने शीशे की दीवार से परे होने वाली बूंदाबांदी को गैर दिलचस्पी से देखा। ये बूंदाबांदी सड़क पर गुजरती गाड़ियों की विंडो स्क्रीन को धुंधलाने के लिए काफ़ी थी। सब गाड़ियों के विंड स्क्रीन पर जब वाइपर चल रहे थे, इस मंजर में जो इसके सामने था इसके लिए दिलचस्पी की कोई बात नहीं थी। वह ज़हनी तौर पर परेशान थी। इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था।
وہ اپنی ताई साबरा के पुरजोर इसरार पर इनको कंपनी देने की खातिर इस रेस्टोरेंट में चाय पीने आई थी। इस हाईटी की मेज़बान ताई साबरा थी और इसके सामने बैठी हाईटी में मौजूद तमाम लाजमात से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मुसलसल बातों में मसरूफ़ थीं। मानो इनकी हर बात का हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। इसी दौरान ताई साबरा को अपने सेल फ़ोन की बेल बजती सुनाई दी और वो अपने किंग साइज शोल्डर बैग में से अपना फ़ोन तलाश करने में मसरूफ़ हो गई। मानो ने एक बार फिर शीशे की दीवार से पार के मंजर पर नजरें डाली। खारी रेस्टोरेंट से बाहर ग्रीन बेल्ट पर लगे झूलों में बैठे बच्चों के साथ हंसता खेलता नजर आ रहा था। इस रोज भी इसने मोती रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और बालों में तेल लगाकर सीधी मांग निकाली हुई थी। इसके पाँव में काले रंग की चप्पल थी और वो बच्चों के साथ इधर उधर भागता फिर रहा था। कितना खुशकिस्मत है खारी, हर तरह की सूरत हाल में खुद को एडजस्ट कर लेता है और कितना पुरअतमाद भी। कोई और इसकी जगह होता तो शहर और शहर वालों की दहशत के मारे अपनी जगह से हिलता भी नहीं। इसे खारी पर रश्क आया। इसी दम रेस्टोरेंट के दाखिली दरवाजे पर खड़ा किसी कार्टून कैरेक्टर का रूप धारे लड़का खारी से जा मिला और अब खारी इस खरगोश बने लड़के के साथ टांगे और बाजू हिला हिलाकर वहाँ मौजूद बच्चों को महसूस करने की लगा था। मानो ने हंसते मुस्कुराते तालियां बजाते बच्चों को भी रश्क से देखा। कैसी बेफिक्री है, कितने मज़े हैं इन बच्चों के, इसने सोचा। मगर मैं इतनी ज़ुदरन क्यों हो रही हूँ? फिर से खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं क्यों दूसरों पर रश्क किए जा रही हूँ? मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है? वो खुद से सवाल करने लगी। ले महानूर, तूने कुछ खाया ही नहीं धीरानी। इससे पेशतर कि वो मज़ीद खुद से नाराज़ होती, ताई साबरा ने इसे इसकी सोचों से बाहर निकाल लिया। इतना कुछ वैसे ही पड़ा है, वो मायूसी से सर हिलाते हुए कह रही थी। अब बिल तो इन्होंने जितना वड्डा ले लेना है, चाहे हम सब कुछ हाथ लगाए बगैर ही छोड़ जाएं। आप फिक्र नहीं करें, मैं इनसे कहकर पैक करवा लेती हूँ। खारी और रज़िया खा लेंगे, मानो ने तसल्ली देने की खातिर कहा और एक नज़र बाहर डाली। लंबे लंबे कानों वाले खरगोश बने लड़के और खारी में गाड़ी छनी नजर आ रही थी। खारी के हाथ में जूस का टिन था। वह इस लड़के से यूं बातें कर रहा था जैसे बरसों की वाक़ियत हो। महानूर ने वेटर से कहकर बच जाने वाले तमाम लवाजमात पैक करवाए और बिल अदा करने के बाद ताई साबरा के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। ओए होए, भाई तो अब भी सूरज गर्म है। बाहर कदम रखते ही ताई साबरा ने दुआई दी। इन दोनों को बाहर निकलता देखकर ड्राइवर पार्किंग से गाड़ी निकालकर आगे ले आया। खारी भी ने देखकर अपना खेल तमाशा छोड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। खरगोश बना लड़का भी अपने लंबे लंबे कान हिलाता, उछलता कूदता खारी के साथ बातें करता इधर को आ रहा था। चलिए जी, खारी गाड़ी के करीब आकर बोला। इसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर मुस्कुराहट झलक रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी के दरवाजे मानूर और ताई साबरा के लिए खोले। मानूर के गाड़ी में बैठ जाने के बाद खरगोश ने इसकी साइड का दरवाज़ा बंद करके सीने पर हाथ रख कर झुकते हुए इससे खुदा हाफिज कहा। मानूर को एकदम ख्याल आया। इसने बटन पर उंगली रखकर शीशा नीचे किया, अपने पर्स से 50 रुपये निकाल कर खरगोश को पकड़ा दिए। जवाब में एक बार फिर इसने झुककर मानूर का शुक्रिया अदा किया। मानूर की खिड़की का शीशा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया और गाड़ी आगे चल दी। तोबा तोबा, बंदा क्या कुछ नहीं करता रोज़ी कमाने के लिए, ताई साबरा ने कहा। इसे देखो, बेचारा जानवर ही बन गया रोटी की खातिर। सारा दिन उछल कूद कर गा बजा कर इसका भला कितनी मजदूरी बन जाती होगी महानूर? उन्होंने महानूर से पूछा। पता नहीं ताई जी, महानूर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो दिन में कितना कमा सकता था। गुजारा हो ही जाता होगा, तभी तो ये काम करता है ना। ओ जी, वाह वाह कमाइयाँ होती हैं इसको, मुझे खुद बताया है इसने। खारी ने खुद को इस गुफ्तगू में घुसाते हुए कहा। मेरे सामने जी कई लोगों ने 50-50, 100-100 के नोट दिए हैं इसे। अच्छा, फिर तो अच्छा ले जाता है, ताई साबरा ने अचंभे का इजहार करते हुए कहा। बीबी जी, वो लड़का है ना, ये इधर का है भी नहीं, बाहर से मंगवाया हुआ है। इसे होटल वालों ने जापान से बुलाकर नौकरी दी है। इसको बराबर सारी जानता है, खारी बता रहा था। इसी दम गाड़ी सिग्नल पर रुक गई। उर्दू ही नहीं पंजाबी भी आती है इसनू,
खारी कह रहा था, जाओ खारी, तुम्हें क्या पता इस कॉस्ट्यूम के नीचे छुपा लड़का पाकिस्तानी है, ईरानी है या जापानी। मानू ने सर झटकते हुए कहा, ओ जी मानू बीबी, मुझे खुद इसने अपना मुंह उतार कर शक्ल दिखाई है। अपनी पूरा जापानी है, छोटी छोटी आंखों वाला, पिचकी नाक वाला। खारी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हमारे फार्म हाउस पर जापानी आते हैं जी। फिर इसने अपनी बात के हक में वोट डालने की खातिर चेहरा पीछे की तरफ मोड़ कर ताई साबरा से पूछा, तू सब उनको अखियाँ मुँह सब पहचानता हूँ जी। इनके लिए तो चौधरी साहब सुशी मंगवाते हैं शहर से। इसे मानूर की तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो, मुझे कौन सी बात का इल्म नहीं। अच्छा भाई होगा, मानू ने बात हार मानते हुए कहा, तुम्हारा तो अच्छा दोस्त बन गया। कोई अता पता भी लिया इससे कि दोस्ती शुरू करके यहीं ख़त्म कर आए। वो मुस्कुराई। ये देखो जी, खाली ने जेब में रखा होटल का कार्ड निकाल कर दिखाते हुए कहा, इसने इसका नाम पता फ़ोन नंबर सब लिखवा लिया है। चौधरी साहब से इजाज़त लेकर इसे फार्म हाउस पर लगे इसे बाबे मंगू दे मेले दे बारे में बताया। वो कह रहा था इसे वो करतब भी आता है जो गेंदे उछालने का। फिर वारी वारी फेंट जा लेते हैं पर गिरने नहीं देते। एक भी पहले सर्कस में काम करता था, अब खाली ड्राइवर से मुखातिब था। पाजी आपने कभी सर्कस देखा है? वह बेलम दिन मेले पर लगता था। पहले तो हम देखने जाते थे, लड़के लड़कियों वाले कपड़े पहनकर सांपों वाला नाच दिखाते थे। खारी अपने दिन में बोले जा रहा था और महानूर को सर्कस के नाम पर सारा खान, इसकी माजूरी और साथ की सारा के लिए शिद्दत पसंदी बुरी तरह याद आने लगी थी। वो 6 साल के बाद लंदन आई थी। इस शहर में कभी इसके नाना रहा करते थे। मम्मी इसे जब पाकिस्तान से वापस लेकर आई थी, पहले लंदन ही में रुकी थी। इस वक्त अपने नाना से पहली बार मिली थी। नीली आंखों और गिरे बालों वाले नाना खासे ज़ईफ थे और बीमार भी। इसे याद था मम्मी और नाना की बहस दिन रात चलती थी। मम्मी चिल्ला चिल्ला कर नाना को कुछ समझाने की कोशिश करती थी और नाना बुरी तरह खांसते हुए मम्मी से जो भी कहते थे, इसमें से एक ही बात इसकी समझ में आती थी और याद भी रह गई थी। वो मम्मी से कहते थे कि इनकी ज़िद, खुदगर्जी और हठ धर्मी इनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे मिजाज को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और नाना अपनी खांसी पर काबू कर पाते हुए कहते, तुम जिस मकसद के लिए लड़की को इससे छीन कर लाई हो, इसमें इसकी सिर्फ तबाही छुपी हुई है, तबाही। तुमने कब मुझे गलत नहीं कहा। मम्मी चमक कर बोली, मैं तुम्हारे पास नसीहतें सुनने या पेशन गोइयाँ कराने नहीं आई। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी इस जायदाद में अपना हिस्सा लेने आई हूँ। जूलिया के साथ मैं भी हिस्सेदार हूँ। चिल्लाओ मत, नाना अपने सीने पर हाथ मलते हुए कहते, मेरी जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुमने हमेशा मुझसे बगावत की, कभी किसी एशियन से शादी की और कभी किसी अमेरिकन से दोस्ती गांठी। न तुम इनकी सगी बनी न मेरी। तुम्हारी जैसी औलाद का बाप होना किसी सज़ा से कम नहीं, और तुम्हारी जैसी औलाद का कभी कोई हिस्सा नहीं हुआ करता माँ बाप की जायदाद में। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं देते। मम्मी फर्श पर पाँव मार कर कहती और फिर सारा सारा दिन के लिए कहीं गायब हो जाती। वो हवननाकों की तरह मुंह उठाए नाना के इस छोटे से घर के 2 कमरों में घूमती रहती, जिनमें से एक में नाना एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठे झूलते रहते और दूसरे में इसकी उदास आंखों वाली आंटी जूलिया, जो सुनने और बोलने की कुव्वत से महरूम थी, बस अब कितारों पर उंगलियां फेरती रहती। पस मंज़र से इसे उठाकर यहाँ ला बिठाया गया था। इसके असरात के ज़ेर असर नादिया को लंदन का ये रूप कतई पसंद नहीं आया था। लंदन गंदा है, सबसे अच्छी जगह इस्लामाबाद है। और मरी हिल्स। अपनी खाला से कहती, जो इसकी बात सुन सकती थी न इसका जवाब दे सकती थी। फिर मम्मी इसे लेकर अमेरिका चली गई। बीमार और बूढ़े नाना और गूंगी बहरी खाला पीछे रह गई। मम्मी ने नाना के खिलाफ कानूनी जंग जीत कर इनकी जायदाद में से अपना हिस्सा हथिया लिया। पाकिस्तान से वापस अमेरिका तक के सफ़र में वो 2 फतूहात के तगड़े इसके शाने पर सजे थे। वो नादिया को इसके डैडी से छीन लाई थी और उन्होंने अपने बाप से अपना हिस्सा वसूल कर लिया था। नादिया के मासूम जहन में मम्मी की फतूहात के तस्करे तो नहीं बैठ पाए थे। उसे बस यही एहसास रहता था कि जो कुछ भी था इसका कोई बड़ा नुकसान हो चुका था। इसके बाद आने वाले सालों में नादिया के इस ख्याल के अमली
शक्ल देते हुए ज़िंदगी से इसका जो तारुफ करवाया था, इसके मुताबिक नादिया का बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। 14 साल की उम्र पहुँचने पर मम्मी इसे बताने लगी कि अपने हम उम्र लड़कों को फंसाने के लिए एक से एक बेहतरीन तरीके क्या थे। एक अच्छा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए कम से कम एक अच्छा लिबास, अच्छे सैंडल और एक वक्त के बेहतरीन खाने का बंदोबस्त तो कर ही सकता है। मम्मी ने इसे लालच देते हुए कहा था, अगर तुम 15 ऐसे बॉयफ्रेंड बना लेती हो तो 2 दिन हर दोस्त के साथ मुताबिक 1 महीने का बंदोबस्त हो सकता है। मम्मी ये सब बताते हुए हंसते हंसते लोटपोट हो जाती और नादिया बेयकीनी से इन्हें देखती रहती, जैसे लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए लिबास पहनने के 100 तरीके मज़ीद बताती। ये तुम्हारी ज़िंदगी है नादिया, जिसे तुमने खुद जीना है। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम अपने लिए क्या बेहतरीन फ़ैसला करती हो। मुझे अभी पढ़ना है मम्मी। वो बेयकीनी से मम्मी की बात सुनती और झुंझला कर कहती, पढ़ना है? मम्मी दांत पीसती। तुम्हारे अखराजात तुम्हारे बाप पूरा करेंगे। वो ज़रूर करता अगर आप मुझे इससे छीन कर यहाँ ना लेकर आती। दादी के दिल पर गुजरे दिनों की याद की कसक उठती। तुम्हें क्या पता तुम्हारा बाप कौन है? वैसे इसी बात पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करती जिससे उन्होंने डैडी को ब्लैकमेल किया था। मैं नहीं जानती। दादी का लहजा गुस्ताख हो जाता। मगर जो आपका तर्ज ज़िंदगी है, इससे लगता है शायद आप खुद भी नहीं जानती। बकवास बंद करो। मम्मी डपटने की कोशिश करती। अब आपको ये बातें बकवास ही लगेंगी। हकीकत में आपने मेरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छी भली मैं डैडी के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी। आप ना जाने कौन से अज़ाइम पूरे करने के लिए एक पूरा ड्रामा रचा कर मुझे यहाँ ले आई और अब मेरी ज़िंदगी तबाह करने के लिए अपने बेहुदा मशवरे देती रहती हैं। आप मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती? वो हाथ जोड़कर मम्मी की आंखों के सामने करती। तो जाओ। वो भड़क कर कहती, जाओ वापस अपने डैडी के पास चली जाओ। नादिया तमस्खराना अंदाज उड़ाने वाले अंदाज में सर झटकती। आपने मुझे इनके पास वापस ले जाने के काबिल छोड़ा होता तो ज़रूर चली जाती। तुम अच्छी तरह जान लो नादिया। मम्मी उंगली से इशारा करते हुए कहती, मैं तुम्हारी कोई माली मदद नहीं करूँगी। तुम्हें अपनी रोज़ी रोटी के अखराजात खुद ही पूरे करने होंगे। फिक्र मत करें, मैं आपसे कुछ लेना भी नहीं चाहूँगी। वो गुस्से से कहती, मेरा सर दर्द है कि मैं अपने अखराजात कैसे पूरे करूँगी। इसके और मम्मी के दरमियान ऐसी बहसें कई बार चली। वो मम्मी के बताए हुए असूलों पर चलने पर खुद को आमादा कर सकी, न मम्मी इसकी माली इमदाद पर राज़ी हुई। एक ऐसे माशरे में जहाँ मादर पदर आज़ादी पैदाइशी हक करार दी जाती थी, खुद को लाशोर में बैठे इन तसुबात के ज़ेर असर हर मुमकिन हद तक बचा कर रखने का फ़ैसला इसका अपना था। वो जानती थी वो किसी दीन के असूलों की तक़दीर कर रही थी, न रवायात व अखलाकियात के दर्स की, लेकिन फिर भी इसे बहुत बचपन में सुनी गई बातें रह रह कर याद आती। एक ऐसे माशरे की रवायत याद आती इससे का ताल्लुक़ कई साल पहले टूट चुका था और वो ख़ुद को किसी काम से ये कहकर रोक लेती, नहीं नादिया, तुम अभी 15 साल से कम उम्र हो। हालांकि वो जानती थी कि इस दलील में कोई मंतक नहीं थी, मगर इसे अपने लिए वजूहात दरकार थी। वो छोटी मोटी नौकरियां करने के ख्वाब बुनती और अपने पास पैसा जमा करने का शौक़ पालते बड़ी हो गई थी। अब वो मादा पता आज़ाद माशरा इसे पूरी ताकत के साथ खुद में जज्ब हो जाने की दावत देने लगा था और इसी माशरे का एक फ़र्द जान खुद इस घर में रहता था, जिसकी मालकन मम्मी थी। जान से मम्मी ने शादी की थी या वैसे ही इसके साथ रह रही थी, ये नादिया को कभी पता नहीं चल सका। मगर जूलिया, बॉबी और मारिया बहरहाल मम्मी और जान की औलादें थीं, क्योंकि इन तीनों के चेहरों में मम्मी और जान दोनों की मुशाबहत थी। जूलिया, बॉबी और मारिया को कब घर में जायज़ बच्चों का दर्जा भी शायद इसीलिए हासिल था। मगर नादिया को इस घर में क्या हैसियत थी कि नादिया को किसी से कोई सवाल किए बगैर ही इल्म था। अभी वो घर से बाहर की दुनिया के रवैयों पर अमल ज़ाहिर करने की मनसूबाबंदी कर रही थी कि घर के अंदर इस पर सनद लगना शुरू हो गई। जान ने 3 बार से दस्त दराजी की जो कोशिश की थी, इसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ मम्मी के गोशे गुजार कर दी थी। जब तक तुम खुद अपने लिए नहीं कमाओगी, इस वक्त तक तुम्हारे साथ अंदर बाहर यही होता रहेगा। मम्मी के नज़दीक इक़्तिसादियात और माशियात के सबक अज़बर कर लेना सबसे अहम बात थी। इन सब हालात और रवैयों का ही रद्द अमल था कि नादिया ने इस घर और एक नामनहाद रिश्ते से जान छुड़ाने लेने का सोचा था।
وہ انٹرنیٹ پر پڑھائی کے لیے کسی سستے مقام کی تلاش میں رہتی اور اسے چھوٹے سے ملک فن لینڈ میں پڑھائی اور رہائش کا خرچہ اپنی حیثیت اور مختلف جگہوں سے ملنے والے وظائف کے عین مطابق لگا۔ ایک جہنم سے نکل کر وہ زندگی کے دوسرے بھیانک چہرے سے نمٹنے کے لیے پہنچی، جہاں طویل اندھیرے اور برف کی قبر جیسے ماحول نے اس کا استقبال کیا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے وہ کھٹن زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اسے حالات سے مقابلہ کرنے اور انہیں جیسے تھے کی حیثیت میں قبول کر لینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ بیلسٹنی میں زندگی سخت تھی، لیکن بہت سی ذہنی اذیتوں سے دور چلی آئی تھی، جن کا سامنا اسے آئے روز کرنا پڑتا تھا۔ بیلسٹنی میں آمد کے بعد جب وہ موسم اور حالات کی عادی ہوئی تو اس نے یکسوئی سے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کو کھوج لگانا شروع کیا۔ اس کی شدت سے یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بچپن میں جن لوگوں سے مانوس تھی، ان میں سے کوئی اسے کہیں مل جائے، پھر اسے ایک کے ذریعے وہ باقیوں تک پہنچ سکتی تھی۔ اس کی لگن تھی یا اس کی نیک نیتی کہ اپنی اس کھوج کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ سعد سلطان تک پہنچ گئی۔ اس تک پہنچنے کی آرزو نہ جانے کب سے اس کے دل میں تھی۔ اسے کئی دن تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ سعد تک پہنچ گئی ہے، اور سعد نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ یہ تو معجزہ ہو جانے والی بات ہے، وہ کئی بار خود سے کہتی۔ سعد سے ہونے والی کبھی کبھار کی گفتگو اس کے لیے زندگی کا سب سے پرکشش کام بن چکا تھا۔ کوئی تھا جسے کسی بھی تعلق، کسی بھی رشتے کے بنا پر وہ اپنا کہہ سکتی تھی۔ اس کے لیے اس سے بہترین احساس کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس میں خوش تھی۔ لیکن سعد کو میل جس میں اسے لندن آ کر ملاقات کی دعوت دی گئی تھی، اس کے نزدیک صدی کا سب سے ناقابل یقین واقعہ تھا۔ وہ کئی دن تک اس دعوت نامے پر یقین کرنے اور بے یقین ہو جانے کی کیفیت میں ڈوبی رہی تھی، لیکن جب اسے جہاز کی ریٹرن ٹکٹ، ہوٹل بکنگ کی کنفرمیشن اور اس کے سفر کے دیگر انتظامات کے متعلق میلز موصول ہوئیں تو اسے یقین آ گیا کہ انسان کی زندگی ایک سے زیادہ دو بار بھی معجزے ہو سکتے تھے۔ اسی دعوت نامے اور اسی سہولتوں کے نتیجے میں اس روز وہ لندن میں تھی۔ ایک 4 اسٹار ہوٹل کے آرام دہ کمرے میں بیٹھی وہ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جو رشتے میں اس کا سوتیلا بھائی تھا۔